ویورز، آج ہم ایک ایسی جگہ موجود ہیں اور ایسے عظیم لوگ ہیں کہ علامہ کا شعر یاد آ گیا کہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں ضعیفوں سے محبت کرنا. ہم اقبال کے شہر میں موجود ہیں. اقبال کے شہر کے ساتھ ہی بجوات علاقہ ہے. ایک طرف دیکھیں تو ترقی کے انبار لگے ہوئے ہیں، انڈسٹری، اور دوسری طرف دیکھیں تو حقیقت سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے کہ ادھر کوئی فیسلٹی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. جب ادھر برج نہیں تھا بنا، لوگ اپنی بیماری میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دنیا سے چلے جاتے تھے. اور یہ اللہ کے درویش، یہ اللہ کے فقیر اور انسانیت سے محبت کرنے والے جنہوں نے بجوات میڈیکل سینٹر کی بنیاد رکھی، نہ صرف بنیاد رکھی اور لوگوں کے لیے انہوں نے آپریشن بھی کر دیے تاکہ جو بیماریاں شروعات ہاسپٹل بنا نہیں ہے، لیکن ہم نے اسی کنسٹرکشن کے دوران ہی ہم نے علاج معالجے کا شروع کر دیا. یہ مطلب کہنے کا کیا مقصد ہے کہ ادھر گورنمنٹ کو چاہیے کہ 1 لاکھ کی آبادی کا یہ علاقہ ہے اور ہیں ہاسپٹل جی، مگر وہ اس لیول کے نہیں ہے کہ تو سر میں آپ کو پوری ٹیم کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. آپ اقبال کے اصل میں شہین ہیں، آپ لوگ ہیں شہین. آپ ذرا اپنی تھوڑی سی جو آپ نے سٹارٹ کیا ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ کس طرح آپ کے ذہن میں یہ آیا. یہ ہمارے سیکرٹری ابتدا میں ہمارے جو ٹیم بنی تھی نا، ابتدائی ٹیم، اس کے یہ جنرل سیکرٹری تھے. اور میں 3 سال تک جی میں نے جنرل سیکرٹری کو جو ہے نا وہ سرو کیا ادھر. اب اسسٹنٹ کے طور پہ ہمارے اب سیکرٹری جنرل شیخ زاہد محمود صاحب ہیں، میں ان کو اسسٹ کر رہا ہوں. تو بیسیکلی کہنے کا مطلب اس کے جتنے بھی معاملہ آتا ہے وہ فنگر ٹپس پہ مجھے کہنے کے یہاں. تو بیسیکلی سر یہ معاملہ یہ تھا کہ ہمارے یہ دوست تھے، یہ پروفیسر منظور الہی صاحب ہیں، الپائن گرامر اسکول جو ہے نا اس کے یہ پرنسپل ہیں. ان کے ساتھ یہ پروفیسر اشرت اورانی صاحب ہیں اور یہ حاجی اللہ رکھا صاحب ہیں. تو چونکہ یہ ظاہر ہے ایک جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ وابستگی تھی ان کی منہاج القرآن کے ساتھ، سارے ان کے اندر ایک جو ہے نا منہاج ان کے اندر ایک جذبہ تھا کہ ہم نے جو ہے نا وہ ٹھیک ہے سارا حساب کتاب کر لیا، ہمارا جو ہے نا وہ تنظیمی نیٹ ورک بھی مضبوط ہے، ہم نے جو ہے نا لوگوں کو ایجوکیٹ کیے سارے حساب کتاب، لیکن ہم ایسا بھی کوئی کام کر دیں کہ جو لوگ سمجھے کہ یہ واقعی انہوں نے. تو یہ ادھر ان کی جگہ تھی حاجی اللہ رکھا صاحب کی، انہوں نے یہ 73 مرلہ جگہ ہے نا جو یہ ڈونیٹ کیے. تو یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بڑی آپ کہہ لیں کہ ایک پرائسیس قسم کی جو ہے نا وہ کہنے کا مطلب یہ یعنی کہ سینٹر ہے یہ بجوات. تو انہوں نے یہ 73 مرلہ کی جگہ آپ یہاں کھڑے ہیں، اس علاقے کا کیا نام ہے؟ یہ بجوات صاحب. تو یہ چکسان، یہ چکسان ہے صاحب. میں اگر وہ کہیں تو وہ تھوڑا سا انشاءاللہ بجوات کا بھی فوٹو بات ہوگا. یہ بیسیکلی جو ہے نا وہ بجوات اگر آپ کہیں تو بجوات یہ 83 دہات پر مشتمل، 85 آپ کہہ لیں 83 دہات کا یہ جو ہے نا وہ علاقہ ہے. اس میں تقریباً 1 لاکھ کے آبادی ہے. آپ دریائے توی کو کراس کریں تو ظاہر ہے پھر آگے بجوات ہے. تو بجوات جو ہے نا وہ ایک لینڈ لاکڈ ایریا ہے. آپ اس کو 3 سرب اطراف سے جو ہے نا یہ جموں کشمیر کی بارڈر ہے جس کو آپ ورکنگ باؤنڈری کہتے ہیں. اور جو ہے نا دوسرا سامنے جو ہے نا وہ دریا ہے توی کا. خشکی کا کوئی راستہ اس کو نہیں ہے. اگر آپ نے بجوات میں آنا تو وہ واحد راستہ جو ہے نا دریائے خشکی کا کوئی راستہ اسے پاکستان سے نہیں ملا، پاکستان سے ملا. تو اب یہ بیسیکلی جب سوچ ڈیولپ ہوئی نا کہ ہم کر کیا سکتے ہیں، کس چیز کی زیادہ جو ہے نا وہ ضرورت ہے ادھر، تو پھر ہم نے یہ سبھی دوست بیٹھے انہوں نے محسوس کیا کہ یار ہیلتھ کے حوالے سے، کیونکہ باقی اگر کسی کے پاس کوئی حیثیت ہوگی وہ جا کے بھی پڑھ لے گا، سفر کر کے پڑھ لے گا سارے، لیکن صحت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ اس کے معاملے میں پرابلم فیس کر رہے ہیں. مثلا یہاں ایک RHC کام کر رہا ہے، تو اب RHC اگر کام کر رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کس طرح کی جو ہے نا وہ سروسز دیتے ہیں سرکاری ہاسپٹل. اور پھر اگر اس طرح کے دور دراز علاقے میں تو پھر تو ظاہر ہے وہ آپ کہہ لیں کہ پرابلم پلس سائز کی ہو جاتی ہے. تو پھر یہ سوچ ڈیولپ ہوئی کہ اب ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے نا ادھر انیشیٹ لینا چاہیے ہمیں جو ہے نا. تو یہ سوچ بیسیکلی بنی اور پھر یہ ماٹو بنا کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے. حالانکہ بے شمار ایسے جو ہے نا وہ کام پروجیکٹ تھے جس میں آپ کہہ لیں کہ ہم اچھا فیم حاصل کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، اگر کوئی پولیٹیکل ورکر ہے تو اس کو جو ہے نا وہ سیاسی ایک کینوس آپ کہہ لیں کہ بڑا وسیع مل سکتا تھا. لیکن پھر چونکہ یہاں تو سروسز دینی تھی، خدمات دینی تھی، صحت کے مسائل کو سالو کرنا تھا، تو پھر ہم نے جو ہے نا وہ یہ اسی شعر کو باٹو بنایا اور الحمدللہ پھر یہ سوچ ڈیولپ ہوئی اور یہ ساتھی اور پھر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. الحمدللہ جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ بلڈنگ کا سٹرکچر جو ہے نا وہ ہم نے کھڑا کر دیا. ڈھانچہ بنیادی نہیں، آپ کہہ لیں کہ ہم بنیادی سے اب نکل آئے. اب تو ہم سروسز دینے کے جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ
जो है ना पोजीशन में है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना वो हमने सोचना शुरू कर दिया कि हम इसको कैसे रन करें, इसकी मशीनरी के हवाले से, ठीक है, डॉक्टर्स को जो है ना वो हायर करने के हवाले से। अब ये आप कहने के हवाले में एक तो ना पाइपलाइन नहीं हमारी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, और आज इसी सिलसिले में आप भी जो है ना वो इधर आप अगर हौसला अफजाई के लिए आए तो हम आपके सर आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और मैं ये पे कहता हूँ कि अहले सियालकोट वालों से मेरी अपील सिर्फ इकबाल के शहीदों से है, गरगत से नहीं है, शहीदों से है कि इधर आपकी ज़रूरत है। जिनके पास 3-3 4-4 गाड़ियाँ ना, एक गाड़ी भी अगर इसे मतलब अमाउंट इस इलाके को दें और ये चीज़ें आगे फलें, ये आगे, क्योंकि आगे जो काम आएगा हमारी नस्लों तक ये चीज़ें जाएंगी, और इस इलाके को ज़रूरत है। कौमें तब भी तरक्की करती हैं कि जब उनके अंदर इंसानियत और मोहब्बत और हुब्बुल वतनी हो, जज्बा हुब्बुल वतनी हो, मिलत उसी तक कायम रहती है। तो अब अरशद कलामी साहब से कहूँगा कि सर आप थोड़ा सा इसमें वो भी ऐड करें जो आपने उसमें बताया था कि यहाँ से एक पेशेंट जाता था, दो से वापस आते थे, असल में गाने का वो टच दें क्या वाणी की वजह से शुरुआत में हमारे जेल में पहले था कि यहाँ पर गायनी के पेशेंट, और आपको पता है कि यहाँ पर अगर खातून वो हो प्रेग्नेंट हो तो रास्ते कैसे हैं, उसको 30-40 किलोमीटर का सफ़र तय करके जब सियालकोट पहुँचेगी तो उसका क्या हाल हशर नशर हो जाएगा। और कई अमवात हुई कि एक खातून गई है जिंदा और 2 लाशें वापस आई, तो इसलिए हमने सोचा कि होना चाहिए। फिर दोस्तों आप मिलके और ये कारवा जो था चल पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें हमारे चौधरी मंजूर साहब अल्पाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है माली जानी, और हमारे हाफिज़ आरिफ साहब हैं, ये हमारे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे, अब ये नायब सदर हैं फाइनेंस सेक्रेटरी। अब की जिम्मेदारियाँ चौधरी मंजूर साहब के पास आ गई हैं, और ये सारे दोस्त अब मिलकर ये काम। अब मैं थोड़ा सा नए आने वालों का भी चौधरी मेरे साथ हैं मियाँ फरीदुद्दीन मसूद साहब एडवोकेट, आप LLM हैं इन शेरिया, यूँ समझे कि बॉरेट लॉ हैं अपने सब्जेक्ट में, और एक रिनाउंड वकील हैं, और लूम इस्लामिया पर कानून पर कॉर्पोरेट लॉ पर इनको बड़ी दस्तरस हासिल है, ये भी हमारा दस्तोबाज बनने वाले हैं। तो ये डॉक्टर साहब हैं, ये गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए, ये भी एक NGO चला रहे हैं, और गुजरांवाला में रहकर NGO के वजह से खिदमत खल्क़ में हर शूबे में इनका अपना एक है जी। और हमारे दोस्त हमायूं साहब हैं, ये भी अल्लामा साहब का बड़ा दर्द रखने वाले हैं, यहाँ तक कि अल्लामा साहब का जो तसव्वुर खुद ही है ना उसको उन्होंने चौधरी मंजूर साहब का बताया। अब मैं मियाँ साहब से कहूँगा, मियाँ मसूद साहब से कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने बलवाल मेडिकल सेंटर की ये जो हमारी टीम के कुछ अफराद अभी पहुँचे हैं, ये देखा, थोड़ा सा आपने हॉस्पिटल को विज़िट किया है, तो इसके बारे में आप अपने ख्याल से नवाज़ें जनाब मियाँ मसूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगा कि इंडो पाक में जो कैरानी साहब के दादा बुजुर्गवार हैं, इनका एक नाम है, और इल्मी और अदबी और हिकमत के हवाले से इनकी बड़ी ख़ानदान की जो है बड़ी खिदमत हैं। यानी पूरे ये जम्मू में और पूरे इंडिया में जिगर मुरादाबादी के शागिर्द थे जो इनके दादा थे, हाँ हज़रत दाद देहलवी के। फिर जो सियालकोट में इनकी खिदमत हैं, जहाँ इमाम साहब चौक में जो इनका क्लिनिक था मतलब, उसमें हकीम मोहम्मद असलम साहब जो इनके वालिद बुजुर्गवार थे, यानी हज़ारों लाखों लोगों ने शिफा पाई है। तो मैं समझता हूँ वही एक खिदमत का अंदाज फैल गया है, और वो शिफा फैलती फैलती मैं समझता हूँ कि बजवाज के इस पसमानदा इलाके में भी आ गई है। और इनके जो भाई हैं हकीम कलीम असलम साहब, हकीम अब्दुल रऊफ साहब, वो अपने वालिद साहब का जो मतलब है उसको चला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इनके अंदर जो दर्द है बुनियादी तौर पे इंसानी खिदमत का, और ये मसीहा हैं ये लोग इंसानियत के, तो ये मसीहाई है इस इलाके की कि यहाँ पर सियासतदानों ने अपने अपने तौर पे काम किया जितना करना था, लेकिन ये जो आगे बढ़ के, और फिर मैं समझता हूँ कि टीम इनको मिल गई है, और वो चौधरी मंजूर साहब से मिलकर बड़ी खुशी हुई है। बुनियादी माहिर तलीम है और खिदमत कर रहे हैं। उसके बाद हाजी अल्लाह रखा साहब जो है, मैं समझता हूँ कि बुनियादी इनका शुक्रिया है कि इन्होंने जगह दी, एक जो है बैठने के लिए जगह दी है, और आगे जब तक मैं समझता हूँ ये सबका जारिया है। अगर कोई एक नमका लगाता है तो नस्लों तक उसका जो है उसको सवाब मिलता है। तो हाजी अल्लाह रखा साहब ने आखिरत में अपना एक घर बना लिया, जब तक ये कायम रहेगा लोगों को शिफा मिलेगी, इंशाल्लाह इनकी जो दर्जात हैं वो बुलंद होते रहेंगे। तो हमारा भी तावन शामिल रहेगा, हमारी जहाँ तक आवाज़ जाती है
पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी ओवरसीज़ में हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ से आवाज़ पहुँचाएँ और वहाँ से जो है अपने पाकिस्तानी ज़ात को कहेंगे ये जो इलाका है बजवात, अगर हुकूमत वक़्त जो है बुनियादी तौर पर ये रियासत की ज़िम्मेदारी है तालीम और सेहत, तो अगर रियासत मदीना जो है अपना काम नहीं कर रही तो ये जो लोग अपने तौर पे निकले हैं वॉलंटियर्स रज़ाकार, अल्लाह ताला इनकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। हम इंशाल्लाह इसके साथ हैं और एक वक्त आएगा कि बजवात मेडिकल सेंटर जो है ये इस इलाके का एक मीनार नूर होगा और सेहत के हवाले से इंशाल्लाह जो है वो भरपूर खिदमत जो है वो इस अंजाम दी जाएंगी। जनाब डॉक्टर इफ्तिखार साहब गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए, इनको खबर मिली कि बजवात में एक हॉस्पिटल बन रहा है, उड़ती खबर मिली, बायो मेडिकल सेंटर के नाम से तस्करा हुआ, तो फिर हमने कहा आए आपको दिखाते हैं कहाँ बन रहा है। तो मैं ये भी चूँकि एक बहुत बड़ी NGO के चला रहे हैं और उसका मरकज़ जो है वो कीनिया में है, अफ्रीका में, इनके बच्चे भी वहाँ काम करते हैं या गुजरांवाला में काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो इन्होंने विज़िट किया, कैसा पाया हमारी इस एफर्ट्स को। सर मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। बातचीत बड़ी खूबसूरत जो है वो मियाँ साहब ने फरमा दी, मेरे भाइयों ने हमायूं साहब ने फरमाई, और मैं सारी टीम को जो है वो खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक दूर उफ्तादा इलाका जो है और लेस डेवलप जो नज़र आ रहा है, तो उस इलाके में और फिर सेल्फ पॉकेट से ये देखें कितनी बड़ी अजमत की बात है। सर मैं तो बात को मुख्तसर करता हुआ हाजी अल्लाह रखा साहब, प्रोफेसर अरशद तेहरानी साहब और भाई मंजूर साहब और उनकी सारी टीम जो BMC की टीम है, मैं सारा का फर्दन मैं तो जनाब सलूट पेश करता हूँ। थैंक यू जज़ाकल्लाह। हाफिज़ आरिफ साहब हमारे बानियान में से हैं, हाजी सनाउल्लाह साहब ये हमारे बानियान में से हैं, और ये आरिफ साहब भी बड़े जज्बाती इस मामले में हैं, तो ये भी अपना थोड़ा सा शेयर दें कि कैसा आपको काम करते हुए कैसा महसूस हो रहा है BMC में। हाफिज़ आरिफ साहब हमारे नायब सदर हैं जी, पहले सेक्रेटरी फाइनेंस के तौर पर काम करते रहे। सबसे पहले जनाब मियां फरीदुद्दीन साहब एडवोकेट साहब का शुक्रिया करता हूँ, डॉक्टर इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार साहब का, वसीम साहब का, हमायूं साहब, हमारे साहब के वाय बजवात में हम इनके शुक्रगुजार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से और तोहरानी साहब वाजी अल्लाह रखा साहब की वसातत से जो ज़मीन मिली तकरीबन 4 कनाल अराजी और अल्हम्दुलिल्लाह कमो पेश तकरीबन 2.25 करोड़ रुपया इधर खर्च हुआ है, सब दोस्तों के तावन से खर्च हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह बजवात मेडिकल सेंटर के जितने भी दोस्त अहबाब ने अपनी जेब से ज़ाती खर्चे से जो BMC फ्रेंड्स वो चला रहे हैं कि जो बजवात मेडिकल सेंटर की असर रकम है ना उसमें नहीं वो खर्च कर रहे, वो फ्रेंड दोस्तों से खर्च कर रहे, जो भी मेहमान वगैरह आते हैं विजिट करने वाले, वो भी प्रोग्राम इधर लॉन्च होता है, जिस तरह आई कैंप लगा, खाने का मुकम्मल इंतजाम अब अंदाजा लगा ले 3 साल से जो आई कैंप लग रहा है उसमें सैकड़ों बंदों का खाना होता है, वो हम BMC पर उसका बोझ नहीं डालेंगे, बल्कि उसी वक्त हम दोस्त अहबाब मिलकर वो कंट्रीब्यूट करते हैं। हालांकि वो मेडिकल कैंप है उस पर हम खर्च किया जा सकता है, लेकिन हम समझते हैं कि अभी नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है, वो हम सब दोस्त कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, उसके पैसे भी हम खुद ही करेंगे। तो जिस तरह बाद में मैं अपने दोस्त हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब रऊफ अली वरिया साहब जी सर, अगर कहें तो थोड़ा सा बिल्डिंग का विजिट नहीं हाँ जी, करें? एक सेकंड, अभी होता है, अभी चौधरी मंजूर साहब के तासरात आएंगे और उसके बाद हाँ जी फिर मलिक साहब। जी, अब चौधरी मंजूर साहब है जी, ये फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे और बड़े एनर्जेटिक हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा आप कह लें कि कामयाब इदारा अल्पाइन के नाम से जो है ना ये चला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आप कह लें कि 1000+ जो है ना वो इनके पास स्टूडेंट्स हैं, प्ले ग्रुप से लेके ये जो है ना वो हायर सेकेंडरी क्लासेस तक जो है ना वो ये काम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ इस हवाले से ये भी अपने जो है ना थैंक यू सो मच हमायूं साहब, मियां मसूद साहब, आपका लामा साहब, आप लोग तशरीफ़ लाए और आप लोगों के आने से हमें जो मोटिवेशन है ना ये हमें वो मिलती है, इंस्पायर होते हैं हम लोग, आप जैसे लोग और जो मुतहरिक हैं, वाइब्रेंट हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने शोबाजात में नुमाया मुकाम रखते हैं, तो आप जैसे लोग जब हमारे खिदमात को सराहते हैं तो वो हमारे अंदर और जज्बा पैदा होता है। और ऐसे लोग जो समझते हैं जो इस वक्त जो हमारी सोसाइटी में जिस तरह के हर बंदा, आपको पता है नफ्सा नफ्सी का दौर है, अपने लिए हर जी रहा है और बल्कि अपने लिए भी उसके मामला उस तरीके से नहीं चल रहे। इस दौर में इंसानियत के लिए और दूसरों के लिए सोचना और वक्त निकालना इबादत से कम नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक है कि उसने हमें इस मकसद के लिए
इस राह पे इस्तकामत के साथ हमें चुना चुना है। इंतखाब। और ये हम बात करते हैं कि ये मुंतखब लोग होते हैं ऐसे ही है। और अल्लाह का बड़ा ख़ास फजल होता है बेशक। कि वो अपने कामों के लिए लोगों को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो ये अल्लाह की तौफीक से और ऐसे मौसम हमें मिले हाजी लड़का साहब और रशीद करानी साहब की सूरत में, इन बुजुर्गों को देख के हमें जो मोटिवेशन मिलती है कि ये 50-60 किलोमीटर फासला और गर्मी सर्दी मोटरसाइकिल पे, तो यकीन माने हमें जो जोड़ते हैं। और ये देख के हमें थोड़ा सा होता है कि ये लोग इस उम्र के हिस्से में और इस इतनी खिदमत इस जज्बे के साथ, तो शर्म भी आती है बाल का कि हम लोग क्यों पीछे और सुस्ती, और बारहा हम सुस्ती करते हैं और ये बारहा अपना फर्ज निभाते हैं और हमें आके जो जोड़ते हैं और हमें आके दस्तक देते रहते हैं, उठे भी ये आपका इलाका है आपके लिए। और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का खास फजल है इन जैसे सरपरस्त हमें मिले। और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के मोहब्बत से, आपकी दुआओं से और आपकी जो मोटिवेशन, आपके जो अल्फाज हैं, इनसे हमें जो हौसला मिला है, बेहतर तरीके के साथ इंशाअल्लाह जो तवानाई हैं अपनी हम यहाँ पे सर्व करेंगे और बेहतर रिजल्ट देंगे आने मियां साहब वाले की वक्त में। नमाज है कि वो दुआया कलमात माशाअल्लाह। इरशाद फरमाए और इख्तितामिया कलमात के साथ। हाँ, मैं ये कहूँगा कि ये मजवात मेडिकल सेंटर की जो बुनियादें हैं, इसमें जिन लोगों का लहू शामिल है, पसीना शामिल है, मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उसमें सबसे पहले तो तेरानी साहब के ख़ानदान में हकीम करीम असलम साहब हैं, तकरीबन 40 लाख रुपया उन्होंने इसके लिए दिया किया। उनके बेटे डॉक्टर अमार अहमद अरशद तकरीबन 11 लाख रुपया उन्होंने दिया है। तेरानी साहब की जो बेटियाँ हैं वो भी दामे दिल में सुपने इसमें शामिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि शहर इकबाल में रहते हुए हम इस ख़ानदान की इल्मी, अदबी और बाकी खिदमात से तो आगाह थे, लेकिन इन्होंने इस पसमानदा इलाके में ये पौधा लगा के मसीहियत का जो दर्स दिया है इस पूरे इलाके को, वो मैं समझता हूँ बैन अवी सतह पे वो पैगाम जाना चाहिए कि यहाँ पे जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं वो ज़रूर विज़िट करें इस इलाके का। और इस इलाके की जो ज़रूरियात हैं, दिबी ज़रूरियात हैं, उसमें ज़रूर अपना हिस्सा डालें। इसमें चौधरी मंजूर लाई साहब तो तलीमी वाले साहब अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन साथ वो यहाँ पे भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि तमाम जो बजवात मेडिकल सेंटर का जो ये स्ट्रक्चर बन गया है, ये जल्द अज जल्द ताकि ऑपरेशन में आए। और इसमें मैं हाजी अल्लाह रखा साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इंग्लैंड जाके बरूने मुल्क वहाँ जो दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी मौजूद हैं, यानी मसाजिद के बाहर इतनी बुजुर्ग शख्सियत आप देखें कि वहाँ खड़े हैं, किस लिए कि अहले बजवात को ज़रूरत है आपकी। तो उन लोगों ने अपना माल खुले दिल दिया, 15 लाख रुपया अभी हाल में वो लेके आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये है वो जज्बा कि इंसानियत के लिए। और मैं समझता हूँ जो रियासत होती है वो माँ की तरह होती है, और सबसे जो बच्चा कमज़ोर होता है, लूला लंगड़ा होता है, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। लेकिन यहाँ ये है हमारे यहाँ के जो जहाँ लोग बिल्कुल मफलूकुल हाल हैं, उनको उनके हाल भी छोड़ दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर रियासत माँ नहीं बनी तो ये जो लोग हैं, तेरानी साहब, मंजूर लाई साहब, अल्लाह रखा साहब, आपने माँ का किरदार अदा किया है। माँ का किरदार अदा करके आपने आज एक शजरे, इनके जो बुजुर्गवार थे हकीम शजर तहरानी, मैं समझता हूँ वो इसम बामुसम्मा थे। वो शजर सायादार जो है, वो ये जो बजवात मेडिकल सेंटर है उसमें वो शजर सायादार है, जिसने पूरे बजवात के ऊपर जब अपनी छाँव कर दी है। और इंशाअल्लाह जो शफा का सफ़र शुरू हुआ है, ये शफा का सफ़र जो है इंशाअल्लाह अपने इख्तिताम तक वो जल्द पहुँचेगा। मेरी तमाम अहले दिल से गुजारिश है, और जो बैन अवी सतह पे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, कि ये जो इलाका है दरिया के पार, इसमें ज़रूर जो है वो यहाँ विज़िट करें और देखें कि कैसे हम खिदमत इंसानियत के लिए कोशा हैं और गामज़न हैं इस रास्ते में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।